to speak in English when we want to describe our daily routine. डेली रूटीन का मतलब होता है हमारा रोजमर्रा का दिनचर्या. ठीक है. तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न कि हम लेडीज जब भी कभी कोई काम करते हैं या मतलब सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टिल द टाइम वी स्लीप, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड चोर्स. हाउस होल्ड चोर्स मतलब घर के काम टू डू. इवन इफ वी आर वर्किंग, then also we have to do household work, and even if we are a housemaker, then also we have lots of work. So how do we describe our daily routine? तो ऐसा कोई है जो अपना डेली रूटीन मुझे बताना चाहेगा इंग्लिश में? Is there anyone who would like to tell his daily routine? Please raise your hand. Is there anyone who wishes? Yes, Hemlata ji, please try. I woke up in the morning 6 a.m. Then I brushed my teeth and went to walk daily for half an hour. Okay, continue. After that, finishes the morning work like tea, milk, making tea, making boil the milk, and take my bath. And took my bath till 8 a.m. I finished this work. After bath, I did my puja for 1 hour. After that, the daily routine of my kitchen work. I did my kitchen work. कितना बोलूं मैम? अभी आगे बोलूं? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ. Am I right, ma'am? Oh. I think you have a kid at your place, no? Yeah, my granddaughter. Okay, no problem. Okay, Hemlata ji, well tried. The first thing is I would like to say daily routine. डेली रूटीन पहले आप लोग समझिए हम किस चीज को बोलते हैं. हम उन्हीं चीजों के लिए बोलते हैं जो हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे. तो जो चीज होती थी, होती है, होती रहेगी, उस चीज को हम कभी पास्ट टेंस में नहीं बोलते हैं. तो हेमलता जी, बोलना चाहिए ना? आपने जितना बोला अच्छा बोला, बट यू टोल्ड ऑल द वर्ब्स इन पास्ट टेंस. सो डेली रूटीन को जब भी हम नरेट करते हैं, वी यूज ओनली द वर्ब्स इन प्रेजेंट टेंस. ओके, क्योंकि ये चीज पास्ट, वो तो हम कल भी सुबह, मतलब अगर मान लीजिए मेरा डेली रूटीन है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो मैं 6 बजे उठती रहूंगी, वो मेरी आदत है. इट इज नॉट कि वो, हाँ ये बात अलग है कि कभी कभी हम थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, बट दैट हैपेंस ओनली समटाइम्स. या फिर ऐसा मान लीजिए कि इफ आई एम अ वर्किंग वुमन, अगर मैं काम करने वाली लेडी हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगी, ऑन सैटरडेज एंड संडेज इफ आई एम हैविंग हॉलीडे, आई विल वेक अप लेट. But normally on my working days, that is from Monday to Friday, I wake up at 6 a.m. So what happens is कि whenever my daily routine is 90% times same, but sometimes it changes for working women. But I am talking today mainly for housewife. Today let's keep only daily routine. हर इंसान का अलग रह सकता है. एक working lady का अलग रहता है, एक housewife का अलग रहता है, एक स्टूडेंट का अलग रहता है. देन सबका खुद का भी डेली रूटीन. अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ, या मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हूँ, या वर्किंग लेडी हूँ, तभी भी हफ्ते के 7 दिन हमारा डेली रूटीन सेम नहीं रहता. 90% लोगों के लिए नॉर्मली हमारा डेली रूटीन changes on Saturdays or on Sundays or on 2 days, because on Saturdays सबके घर में कोई ना कोई दिन ऐसा होता है जब उनके घर के जो जेंट्स लोग होते हैं उनको छुट्टी होती है, उनके बच्चे लोगों को छुट्टी होता है. isn't it or not? So on those days our routine changes, no? We don't do like, why don't we have our class on Sunday? हम यहाँ पे संडे को क्लास नहीं लेते ना. ऐसा क्यों करते हैं हम संडे को क्लास नहीं लेते? Why? Because we all are busy. Our daily routine changes because we have our kids at home. We have, for the elderly lady, you have your sons at your home. You do more of, for others it is a holiday, but for housewife it is a working day. In fact, it is a more working day for them because everyone is at home.
So we feel like cooking something nice, we feel like doing something extra for our family members. Yeah, full family decides ki today we'll have a holiday, we'll go for a picnic, or we'll cook food for one time, and for evening we go out for lunch or dinner. In the noon time we go out for lunch, or we go out for dinner in the evening time. So normally our daily routine changes on Sundays, but it may be same from Monday to Saturday. इस तरह से हमारा daily routine होता है. तो before I start telling you how to tell your daily routine, let me tell you some phrases. पहली कुछ important चीजें. डेली रूटीन बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम आय करके बताएंगे, और डेली रूटीन में हम पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं. V1, कल आप लोग को याद होगा मैंने V1, V2 और V3 फॉर्म्स पढ़ाए थे, यानी V1 यानी प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल वाले वर्ब. एंड इफ यू रिमेम्बर, आप देख लेना, प्रिया मैडम ने आज V1, V2, V3 की शीट्स भी डाली हैं कुछ ग्रुप पे. तो आप जब भी फ्री होते हैं ना, यू कैन रीड अलाउड द वर्ब्स इन V1, V2 एंड V3 फॉर्म्स. खाली वक्त में आप जरूर से पढ़िए, उससे आपको वर्ब कैसे चेंज होता है प्रेजेंट से पास्ट में, और पास्ट से फिर हैव हैज हैड के फॉर्म में और आईएनजी के फॉर्म में, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार सेम वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है अलग अलग टाइम पे. फाइन. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रीड व्हेन एवर यू आर फ्री. लेकिन अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की. किसी कुछ बोलना है हेमलता जी? यू वांट टू से समथिंग? ओके, प्लीज अनम्यूट हेमलता जी. पूजा जी. Pooja, are you there? Yes, Didi. Yes, I am there. Just a minute, Hemlata ji is. Yes. मुझे याद आया कल आपने बोला था कि कभी भी अपन जब रूटीन बोलते हैं तब हैव लगाते हैं, राइट ना? हाँ, हैव मतलब प्रेजेंट टेंस है ना. हैव कोई भी चीज, खाली हैव नहीं, जो भी क्रिया के बारे में हम बात करेंगे, whatever action we are talking about, it has to be in present tense only whenever we talk about daily routine. वैसे भी जो चीज होती थी, होती है, होती रहेगी, वो कभी भी पास्ट नहीं होती, वो चलती रहती है. हैबिट्स या फिर जैसे अब सूरज उगता है, कभी हम ऐसा बोलेंगे कि सूरज पश्चिम से उगता था या पूरब से. सूरज पूरब से उगता था है. सन राइजेस इन द ईस्ट. वी कैन नेवर से कि सन रोज इन द ईस्ट. राइज का पास्ट टेंस होता है रोज, लेकिन हम कभी भी राइज ये सेंटेंस को बदल ही नहीं सकते कि सन रोज इन द ईस्ट, क्योंकि ऐसा सन तो पहले भी ईस्ट में ही राइज होता था, आज भी ईस्ट में राइज होता है, और आज के बाद भी राइज होगा. पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 100 डिग्री पे बॉईल होता था, होता है, होता रहेगा. तो ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती हैं, दैट इज ऑलवेज सेड इन प्रेजेंट टेंस ओनली. सो दैट इज ऑल्सो द डेली रूटीन और हैबिट ऑफ अ पर्सन. हमारी आदत भी ना जल्दी से बदलती नहीं है, तो दैट इज व्हाट इट इज ऑलवेज रिटन ऑन द इन द प्रेजेंट टेंस. तो ये हम क्या क्या करते हैं डेली रूटीन में, उसके मैं आपको कुछ फ्रेजेस दिखा देती हूँ बिफोर वी टॉक अबाउट आवर डेली रूटीन. जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. मैंने ग्रुप पे ही डाला हुआ इनफैक्ट. ओके, ये स्क्रीन सबको दिख रही है? कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes. Okay, so I'm just telling you how to write down these sentences. ठीक है, how do we write down these sentences is कि जैसे हम खाना खाने को have dinner बोलते हैं रात के, I have my lunch, I have my dinner, I have my breakfast. और खाना बनाने के लिए हम बोलेंगे I prepare dinner, I prepare breakfast, I prepare lunch. तो कुछ इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे, छोटे छोटे फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. हाँ, I have my breakfast, I have my dinner, I have my lunch. सोने जाने के लिए हम वर्ब यूज करेंगे I go to bed. और सुबह उठने के लिए मैंने आपको बताया था एक चीज, अंग्रेजी भाषा में गेट के भी, जैसे हैव के मैंने कल आप लोग को बताए थे कि देयर आर मल्टीपल मीनिंग, सिमिलरली गेट ऑल्सो हैज सम मल्टीपल मीनिंग. गेट का मतलब होता है मिलना. आई गेट मेनी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे. मेरे बर्थडे पे मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, तो वो मिलना हो गया. लेकिन आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे, यहाँ पे गेट का मतलब हो जाता है उठना. आई गेट ग्रोसरी फ्रॉम द स्टोर एवरी इवनिंग या एवरी वीकेंड. ग्रोसरी का मतलब किराना. आई टेक ग्रोसरी, आई गेट ग्रोसरी भी बोल सकती हूँ. अब यहाँ पे आई गेट ग्रोसरी का मतलब हो जाएगा लाना, कि मैं ग्रोसरी लाती हूँ स्टोर से हर
वीकेंड पे। और फिर आई गेट माई सन फ्रॉम द स्कूल एट 2 PM। गेट यानी फिर से यहाँ पे लाना, और गेट अप मतलब उठना। तो आई गेट अप, आई वेक अप, दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आप लिखेंगे आई गो टू स्कूल, आई डू माई होमवर्क, आई गो टू वर्क। इफ यू आर गोइंग टू वर्क, आई गो टू वर्क, ब्रश माई टीथ, आई हैव लंच, आई वेक अप। जब हम उठते हैं तो अपना अलार्म लगा के उठते हैं, तो उसको बंद करते हैं, तो अलार्म को बंद करने के लिए बोलते हैं आई टर्न ऑफ माई अलार्म। व्हाट डू यू से? आई टर्न ऑफ माई अलार्म। आई टेक अ शावर, आई टेक अ बाथ। नहाने के लिए हम इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं आई टेक अ शावर, आई हैव अ शावर, या फिर आई टेक अ बाथ भी बोलते हैं, ठीक है। आई टेक अ बाथ आफ्टर क्लीनिंग माई हाउस। आई नॉर्मली टेक माई बाथ अराउंड 8 AM after finishing my after doing the dishes, या after arranging the dishes, after preparing the breakfast, या after कुछ भी करने के बाद, whatever, everyone can say something different. तो I have a shower। फिर तैयार होने के लिए हम नहाते हैं I take a bath। हमेशा I take a bath ही सेंटेंस बनेगा, या फिर I take a shower ही बनेगा। इसको इसी नहाने के लिए इसी तरह से बोला जाता है। There's no other way to say this thing, ठीक है। फिर बाल बांधने के लिए आई कोम माई हेयर। इतना डिटेल बताने की वैसे जरूरत नहीं रहती। आई गेट रेडी आफ्टर टेकिंग अ शावर, आई गेट रेडी एंड आई डू माई डेली प्रेयर्स। आई डू माई डेली प्रेयर का मतलब होता है कि फिर मैं अपनी रोजमर्रा की पूजा करती हूँ। आई ऑफर प्रेयर टू गॉड, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, आई ऑफर प्रेयर टू गॉड। देन आफ्टर आई कंप्लीट माई पूजा, आई मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। आई मेक के बदले हम यहाँ एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो से आई ईट ब्रेकफास्ट। अब उसके बाद में आई ईट ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं, या फिर माई होल फैमिली टेक्स ब्रेकफास्ट टुगेदर। हम इस तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है। देन अगर आप काम करना चाहते हो, ऑफिस जाते हो, तो आप एक वर्ड इसके बोल सकते हो, after taking breakfast, I packed my tiffin and I leave for my office at 8:40 AM. I reach my office by 9 AM and then I start my office work. और यहाँ पे I start work at 9. I answer emails. As soon as I start work, I first check my phone or I check my emails. And if some emails are to be answered, I answer them. मतलब मैं अपने दिन की शुरुआत ईमेल जो पहले दिन के आए हुए हैं उनको आंसर करके करती हूँ। दिस इज फॉर द वर्किंग पीपल। आई वर्क ऑन माई कंप्यूटर। आई फिनिश माई वर्क बाय 5 PM। आफ्टर दैट आई लीव फॉर माई होम एंड आई रीच होम बाय 5:40 एवरी डे। आई अराइव होम भी बोल सकते हैं, आई रीच होम बाय 5:40 भी हम बोल सकते हैं। आई फीड द डॉग, ये अगर जिनके यहाँ है तो वो अपना वक्त लगा के इसमें बता सकते हैं। After reaching home, I take rest for some time. In the evening, I take snacks and some tea. I get freshen up and then I prepare dinner for my family. उसके बाद में I do the remaining household work. I fold the clothes which were left out for drying by the maid. मतलब दिन में आपके पीछे से हो सकता है बाई आके कपड़े सुखा के गई होगी, तो I take out the clothes from the garden या from the balcony. I take up the clothes from the balcony, fold them, arrange them. I also iron sometimes. Iron मतलब press करना। I also iron the clothes sometimes. फिर उसके बाद हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि then I also go for an evening walk, या I go to buy some vegetables from the market. After prepare, I come back home, I roll some chapatis and the dinner is ready. My whole family takes dinner together at 9 PM. So since I get time for 1 hour, I watch TV at that time. Then around 9 PM, my whole family takes dinner together. I wind up the kitchen. I complete my daily work. I keep things ready for next morning and then I go to my room. Before sleeping, I like to read some books. Yeah, I like to read newspapers. Yeah, I also sit on social media for some time. Normally आजकल बुक पढ़ने का तो जमाना चला ही गया। हम लोग आजकल क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे बैठ के क्या करते हैं, व्हाट डू वी नॉर्मली डू, हम लोग आजकल किसने क्या किया हमें उसकी जिंदगी में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा बैठ के
दुनिया की खाक छानते हैं कि कहाँ क्या नया हुआ, फोन पे बैठने की हमें बीमारी हो गई आजकल, एंड जबकि ये अच्छी बात नहीं है। सोने के पहले वी शुड कीप आवर फोन अवे फॉर हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग, बट 80% पीपल डोंट डू दैट। हम सो बिफोर गोइंग टू बेड आई स्क्रॉल सोशल मीडिया फॉर सम टाइम, आई वॉच, अब सबका अपना अपना इंटरेस्ट, हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। So there are multiple things which people can do as per their interest. So you can add that thing accordingly. I go to bed by 10:30 p.m. My day ends every day by 10:30, but on weekends I don't sleep at 10:30 because sometimes we go for a movie, or sometimes we even go for a long drive, or sometimes we go to our friend's place. कभी कभी हम अपने दोस्तों के घर पे भी जाते हैं, and so on weekends I usually sleep after 11:30, but on weekdays I go to bed by 10:30 and next morning again I am up by 6 o'clock. तो ये कुछ इस तरह के phrases मैंने अभी आपको बताया. ओके, शीला नवंदर जी कुछ बोलना चाहती हैं. पूजा, इनको अनम्यूट करिए. जी दीदी किया. हाँ शीला जी. हाँ दीदी, ये at 5 I finish my work, at 5 की by नहीं, at 5 और by 5 दोनों चलता है. एग्जैक्टली 5 बजे तक अगर आप बोलना चाहती हैं आई फिनिश माई वर्क बाय 5, और अगर एग्जैक्ट टाइम बताती हैं तो at. जैसे ट्रेन स्टेशन से कब छूटती है मान लीजिए, तो ट्रेन छूटने का तो टाइम एग्जैक्ट ही होता है ना हर जगह. तो द ट्रेन फॉर मुंबई लीव्स एट 5 PM डेली, क्योंकि वो फिक्स है. अब मेरा काम अगर रोज फिक्स 5 बजे खत्म हो जाता है तो ठीक है एट, लेकिन 5 बजे तक या 5 बजे के आसपास खत्म होता है, वो फिक्स नहीं है, तो फिर आई कैन ऑल्सो यूज बाय. आई कंप्लीट माई वर्क बाय 5 PM एवरी डे. बाय भी चलेगा, एट भी चलेगा, थोड़ा सा मतलब अलग है. ओके, बाय यानी उस वक्त तक मैं खत्म कर लेती हूँ, और एट मतलब एग्जैक्टली उसी वक्त खत्म होता है. ये फर्क है. एक थोड़ा तकरीबन वर्ड को बताता है और एक एग्जैक्ट बताता है. ओके, और ये कुछ और डेली रूटीन वोकैबुलरीज से पहले हम डेली रूटीन करें, इसके पहले में हम ये फिर से पढ़ लेते हैं. वॉश योर फेस, लीविंग होम, हैव डिनर, टेक अ बाथ, वेक अप, गेट ड्रेस्ड, वॉच टीवी, आई पैक माई लंच, I prepare breakfast for the whole family. I also take breakfast with my kids and my husband. Then I pack my lunch for the office and leave my home at 9 AM. तो इस तरह से ये सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं. Put on my pajamas. I like to sleep in night dress. So before going to bed, I always put on my pajamas. Yeah, I put on my night dress. I like to wear loose clothes while sleeping. It gives me comfort. कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, बिस्तर ठीक करने वाला पॉइंट. एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 6 o'clock या आई गेट अप एट 7 o'clock. आई क्लीन माई रूम एंड आई मेक माई बेड. मेक माई बेड का मतलब होता है बिस्तर समेटना, और बिस्तर लगाना भी होता है. अब सुबह के समय आई मेक माई बेड का मतलब मैं बिस्तर उठा रही हूँ, और यही मेक माई बेड अगर आप रात को बोलेंगे तो इसका मतलब बिस्तर लगा रही हूँ. But the phrase is going to be the same. ठीक है. तो I make my bed, I clean my room, I do the dusting, I arrange things on its place. Arrange things on its place का मतलब मैं जगह पे जो भी चीज थी वो वहां पे लगा रही हूँ. ठीक है. फिर ब्रश माई टीथ वगैरह इतना बारीक बताने का जरूरत नहीं है कि मैं उठने के बाद ब्रश करती हूँ. ऑल नॉट रिक्वायर्ड. हैव ब्रेकफास्ट, अनड्रेस, read in bed, learn at school, meet the teacher, take the bus to school. I sleep. Yes, you can put this point. During noon time, when I don't have some work, when I complete my work, I take some rest. I sleep for half an hour. Yeah, I sleep for an hour. Then I get up and watch TV for some time. Yeah, I make evening snacks. Yeah, whatever. सबका अपना अपना routine रहता है. फिर comb my home, do homework के बदले आप लिख सकते हो I help my kids to do their homework. I help my grandchildren to do their work, to do their project. Brush my hair, have lunch at home, pack my school bag, go to school, take a nap. हाँ, झपकी जो हम बोलते हैं ना कि in the noon time I just take a small nap. जैसे अभी दोपहर में हमारा 3:30 बजे क्लास चालू होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि like हम कुछ तरह से बोल सकते हैं कि I don't sleep in the afternoon, I just take a small nap.
आई जस्ट टेक अ स्मॉल नैप का मतलब होता है कि मैं बस एक छोटी सी झपकी लेती हूँ एंड इट एनर्जाइजेस मी, एंड इट एनर्जाइजेस मी का मतलब होता है वो मुझे वापस से फ्रेश कर देती है। और वैसे भी ऐसा जरूरी बोला जाता है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, सोना जरूरी नहीं है दिन के वक्त, लेकिन अगर आप छोटी सी झपकी लेते हैं, अगर आप इफ यू गिव सम टाइम फॉर बोला जाता है इट्स अ पावर नैप, पावर नैप का मतलब होता है छोटी सी झपकी। तो इवन इफ आई तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आई डोंट प्रेफर स्लीपिंग ड्यूरिंग द नून टाइम। आई डोंट प्रेफर का मतलब होता है मैं दोपहर में सोना पसंद नहीं करती हूँ, बट येस आई डू टेक अ पावर नैप। आई डू टेक अ पावर नैप का मतलब होता है कि मैं एक छोटी सी झपकी जरूर रहती हूँ, इट अगेन फिल्स मी विद द एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट रिलीव्स माय इट रिली इट रिलीव्स माय फैटिग, फैटिग मतलब इट रिमूव्स माय फैटिग, फैटिग मतलब थकावट। दैट पावरफुल नैप रिमूव्स माय फैटिग एंड इट फ्रेशन्स मी अप फॉर द रिमेनिंग डे, या इट एनर्जाइजेस मी अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हम ये दोनों तीनों तरीके से बोल सकते हैं। तो पावर नैप दोपहर में लेना एक अच्छी बात होती है, बट घंटों सोना एक बुरी बात होती है। तो ये अपना अपना ऑप्शन है कि व्हाट डू यू प्रेफर। ओके, सो प्ले विथ माय फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे हैं तो आप वैसा बोल दीजिए, या फिर अगर आप मदर है तो यू कैन से इन द इवनिंग माय किड्स गो आउट एंड प्ले विथ देयर फ्रेंड्स, मीनवाइल आई डू माय हाउस होल्ड चोर्स, मीनवाइल आई डू द आयनिंग ऑफ द क्लोथ्स। फिर आफ्टर ऑल माय वर्क इज डन, I relax on the couch for some time, scrolling on the social media. What is scrolling on the social media? Scrolling on the social media का मतलब होता है कि हम अपना फोन पे हाथ रख के बस सिर्फ देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, जो पसंद आया उसको देख लिया, नहीं तो आगे बढ़ते चले गए। फिर लीविंग स्कूल, आई टेक अ शावर, गेट अप। सो दीज आर जस्ट दी कॉमन थिंग्स। ओके, सो आई गेस ये पॉइंट्स आपको समझ में आए कि हम किस तरह के पॉइंट्स बोलते हैं इन डेली रूटीन। Are you all aware? Did you all understand how we put the points in our daily routine? और इसमें एक पॉइंट हमने ये एंड में जरूर मेंशन करना चाहिए कि our daily routine changes on weekends. Our daily routine changes during holidays, during summers, या whenever I go out with my family for some family trip or for some vacations. उस समय तो हमारा डेली रूटीन चेंज ही होता है ना, जब कभी हम घूमने जाते हैं, या आपकी बेटियां आपके घर आती है, या आप अपने मायके जाते हो, या सैटरडे संडे पे आपके घर में कोई और लोग आते हैं, तो हमें एक पॉइंट मेंशन कर देना चाहिए कि नॉर्मली इट इज द सेम बट इट चेंजेस ऑन XYZ डेज। तो ये अभी मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दिए हैं। एंड बिफोर आई कंटिन्यू, पूजा जी आप सबसे कुछ बोलना चाहेंगी तो आई विल गिव हर सम टाइम टू स्पीक। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मनस्वियों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, जहां से आप जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से, विभू अर्थात सर्वव्यापक विभू विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन नागपुर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिए चलाया जा रहा उपक्रम है हेल्थ फॉर ऑल, अखंड स्वास्थ्य से अखंड आनंद। यह उद्देश्य है, इसके तहत हर रोज सुबह 6:10 से 7:40 विभू योग प्राणायाम निरंतर 23 अक्टूबर 2020 से चल रहा है और जल्द ही अब इसके 500 डेज पूरे होने जा रहे हैं। तो आप सभी इसका भी लाभ ले सकते हैं। और लेडीज के लिए भी एक स्पेशल सेशन चलता है यस फॉर योगा मनस्वी के तहत। मनस्वी प्लेटफॉर्म है विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन का, जिसके अभी तक 8 सीजन्स हो चुके हैं। उसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर अप किए गए, वेट लॉस, बेली फैट, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ आदि। तो आप ऐसे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के और भी उपक्रम से भी जुड़ सकते हैं। यही मुझे बताना था आप सभी मनस्वियों को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। Okay, thank you, Pooja. Fine. So, like this, I want all of you to take the benefit of different kinds of workshops organized by VLF Foundations. Okay. So, अभी तक जितना बताया, are you all clear about it? I made it bit fast, but I explained how to tell your daily routine. Are you all clear? सबको समझ में आया? To like in next session,
लाइक टुमारो व्हाट आई, अभी तो मैं वैसे एक आध सैंपल भी आपको बता ही रही हूँ डेफिनेटली पढ़ के, बट व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू इज टू राइट योर डेली रूटीन एंड पोस्ट द पिक्चर इन द ग्रुप. अभी हम एक सैंपल देख लेते हैं. मैं आपको कुछ सैंपल, एक मुझे गूगल लिंक मिली थी विच मैंने भी अभी तक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन लेट मी सी व्हाट दे हैव रिटन. मैंने ग्रुप में इसलिए डाल दिया था. इवन आई हैव टू रीड इट. मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है खुद भी. हम उसको ओपन कर लेते हैं. लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन. डेली रूटीन ऑफ अ हाउसवाइफ. सी, यहाँ पे एक ये सैंपल है. वी कैन जस्ट इजीली, आई जस्ट रीड इट आउट क्विकली. ये एक नॉर्मल हाउसवाइफ का डेली रूटीन है कि माय डे स्टार्ट्स एट 6 AM. आई गेट अप, I wash myself, I take a shower, comb my hair, make up my mind to have a good day. देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा है उन्होंने कि मैं अपना दिमाग बना लेती हूँ कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो. I make up my mind to have a good day. Then at 7 sharp, I wake up my kids and go to make breakfast. इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो. I wake up my kids या children and then go to prepare the breakfast for the family. On the whole, we have 3 children together with my husband. ये लाइन हम थोड़ा और अच्छे से लग सकते हैं कि I have 5 members in my family. Myself, my husband and my 3 kids. This moment, my husband is still dreaming. He wakes up 7:30 as his working day starts at train. तो इसमें आप थोड़ा सा लाइक कि जब मैं उठ जाती हूँ तो my husband is still dreaming का मतलब वो यहाँ बोलना चाह रही हैं कि वो अभी भी सो रहे हैं. मतलब पहले सबसे पहले वाइफ उठती है, देन शी वेक्स अप द किड्स एंड लेट. उसके बाद में हस्बैंड सबसे लेट उठते हैं. क्यों लेट उठते हैं? क्योंकि उनको काम पे 10 बजे जाना होता है, तो वो सुबह 7 बजे से नहीं उठते. While the children are awakening, yawning and fooling around यानी यहाँ से वहां घूमते हैं, I make the breakfast. Typically, it consists of porridge with fruits and eggs and salad. अब यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं. Normally, I make upma and poha for my breakfast. At the same time, I also prepare sabzi and chapati for their tiffin. If I have to make breakfast in a hurry, then I make sandwiches with whole wheat bread and some cheese. During the cooking, I always keep an eye on the children. एक सेकेंड, बीच बीच में क्या आ जाता है, फिर ये चाहता भी नहीं. बनाना इसको क्रॉस नहीं हो रहा. हाँ, दिस ऑलवेज हैपेंस, यू नो. ये ऑनलाइन के ना लिंक्स का यही प्रॉब्लम होता है. Try and scroll it down if it's possible. Yeah, it's not getting removed. Close it and reopen it again. Okay. Because unless and until you're not sign it through Facebook, it won't help it. It is not even. Okay. Yeah, the daily routine of a housewife just now. Yes. नहीं, ये तो मैंने स्टॉप शेयर किया ना. So reopen it now. Wait everyone, huh? Just 2 minutes. Get ready. We have to leave. Okay. I'm again sharing it so that we just complete it. Okay. Now, is it visible again? Is it visible? हेमलता जी दिख रहा है? Yes, दीदी. हाँ जी दीदी. Okay, fine. थोड़ा सा जूम करके आप सब अपने साइड से भी रीड कर सकते हैं दीदी के साथ. अब I'll just complete it reading. If I have to make breakfast in hurry, I make sandwiches with whole wheat bread and cheese. During cooking, I always keep an eye on the children, urging them on. They can spend hours on doing nothing, chat, play and even argue. मतलब मैं बच्चों पे नजर रखती हूँ क्योंकि बच्चे कई घंटे तक वक्त बिना कुछ करे बिता देते हैं. If I don't put an eye on them, they even start fighting.
or they keep on sleeping, arguing, chatting, or playing. It's good that they play nicely in the morning. I encourage my children to do some exercise as soon as I'm done with my breakfast. हम ऐसे अपने आप से इसमें जोड़ सकते हैं. At 7:45 or little earlier, we the whole family sit together for the breakfast. At 8 o'clock on dot, I am seeing the children off to school. इसके पहले हम ये भी लिख सकते हैं. After making breakfast, I prepare my children. I make my children ready for school. अगर बच्चे हैं तो आपको उनको ready करना पड़ता है. अगर बड़े हैं तो आप ये लिख सकते हो. While I am preparing the breakfast, my children get ready for their school. After that, they take some breakfast. They take a milk and a slice of bread. I pack their tiffin, and around 8 o'clock, I see them off to school. या फिर simple language में आप लिख सकते हो. My children leave for school. My husband get children to school and then he gets children का मतलब हो गया drops. My husband drops the children to the school. अब ये ना बार बार वही आ रहा है. Didi, I've shared on WhatsApp on your personal chat. You can share it from the screen also. Okay. Yes, it is. Huh? Fine. Thank you, Priya. ये ठीक है. हाँ, फिर my husband drops gets children to school का मतलब है स्कूल ले जाते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, get का मतलब ले जाना और लाना भी होता है, या इसकी जगह आप drops भी लिख सकते हो. My husband drops my children to the school and then goes to the office. I stay at home on my own and look after the house. I complete the pending household chore. I get the house cleaned. I do the dusting. I look after the laundry. I do the laundry भी बोलते हैं हम. I do the laundry है ना, मैं कपड़ों को देखती हूँ या खुद ही कपड़े धोती हूँ. I do the ironing of the clothes also which are pending from the day before. कुछ भी बोल सकते हैं, whatever work you normally do. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, after my husband and my kids leave for school, after my kids leave for their school, my husband leave for his office, I get some time to offer my daily prayers. Offer my daily prayer मतलब मुझे पूजा करने का थोड़ा वक्त मिलता है. So I pray to God for some time. For the well-being of my family. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, I pray to God for the well-being of my family. This is always at first glance it might seem that being the houseful is a piece of cake, but it is not true. यहाँ पे ये वो बोलना चाहती है कि किसी को भी ये लगता होगा कि एक हाउस वाइफ की लाइफ तो सबसे आसान और आरामदायक होती है. इट्स अ पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बहुत ही आसान जिंदगी होती है हाउसवाइफ की. ऐसा सबको लगता होगा, बट ऐसा नहीं है. बट दिस इज नॉट ट्रू. This is all. There is always some household chores in the house. When you have kids, laundry, cleaning, cooking becomes a daily occupation. यही आपका काम हो जाता है. घर पे हर वक्त कुछ ना कुछ काम होता है. Your kids' dirty clothes, they keep on creating mess all around the house. Every now and then you have to keep on cleaning the house throughout the day. Laundry वगैरह भी. And if you have small kids at home, they keep on spilling things here and there. Spilling का मतलब होता है फैलाना. या someone spilled coffee on the carpet. Well, brush the carpet again. ये शॉर्ट में लिखा है इन लोगों ने. हाँ, कि कभी बच्चे ने फुटबॉल खेलते खेलते कपड़े गंदा कर लिया तो फिर आप आराम से बैठे हो, आपको उठ के फट से उसको धोना पड़ेगा. तो I have to get up and again clean it. अब suppose if sometimes I'm sitting nicely and spending my leisure time. एक वर्ड है leisure time, आप लोग लर्न कर लीजिए. Leisure time का मतलब है free time. Suppose I'm watching my favorite daily soap on television and spending my leisure time, and suddenly someone from my house spills the coffee on the carpet. I have to get up and brush the carpet away. In general, my hands are always full. In addition, humidity and cleanliness must be in the house all the time. You know, the worst thing for parents is when the children get sick. And moreover, when your children get sick, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, moreover, whenever any member of the house gets sick, we have lots of work to do. We have to attend them and we have to also continue with our other work. Moreover, the work of a housewife is never ending. It continues 24/7. 24/7 मतलब दिन और रात काम चलता ही रहता है. Sometimes it is visible, sometimes it is not visible. So this is a very easy sample that I have given you. Okay, so I think this much is clear to everyone. इसके बाद में कुछ एक दो सैंपल और है मेरे पास
मैं आप लोग को देती हूँ और आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर. अब क्या होगा, टुमारो इन द रेगुलर बैच जो लोग धीरे बोल पाते हैं, आई वॉन्ट देम टू स्पीक देयर डेली रूटीन टू मी. ठीक है. एंड देन जो लोग फास्ट इंग्लिश में सुना सकते हैं उनको मैं परसों मौका दूंगी. दे विल टेल मी देयर डेली रूटीन. अब ये जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, एक स्टूडेंट का डेली रूटीन है. सी व्हाट इज दिस. आई वांट वन ऑफ यू टू रीड. कैन समवन रेज योर वॉलंटियर फॉर रीडिंग. I want one of you to volunteer for reading. Anyone raise your hand? Okay. पूनम जी. पूजा जी, पूनम जी को एक बार अनम्यूट करिए. यस डन दीदी. Okay. Yes, पूनम जी. Yes, my daily life. I am a student. आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट, अपने आप को स्टूडेंट अज्यूम करना है और उसके नजरिए से बोलना है. ओके. Yes. I am a student. I follow a simple routine in my daily life. I normally get up at 5:30 a.m. and make for morning walk. I spend about 1 hour in the field and do some exercise. एक्सरसाइजेस मतलब मैं 1 घंटे तक गार्डन में रहती हूँ और कुछ एक्सरसाइज करती हूँ. Then I come back my home, taking breakfast, sit down to read at about 7 p.m. I study, write, and complete my home task till 9:45. प्रमीला Change हो रहा है. मैम नहीं है. पूजा दीदी वो स्क्रॉल डाउन हो गया है. हाँ हाँ सॉरी. हाँ जी पढ़िए. हाँ. I study, write, and complete my home till 9:45 a.m. I do not allow any disturbance during study. I go to the river to take bath. Our classes begin at 11 a.m. I reach school at least 10 minutes earlier and take my set in. वो गलत लिखा है, वहां पे सीट होना चाहिए. टेक माई सीट इन द फ्रंट रो. वहां थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है. या As soon the bell rings for the recess period, we in the after I take my lunch and go to the field to play cricket and football. At dusk I reach home. डस्क का मतलब पता है आपको, जो जब ना शाम खत्म होती है और रात शुरू होने की है. एक ऐसा वक्त आता है दिन में जब ना पूरी तरह से उजाला होता है ना पूरी तरह से अंधेरा होता है. आप देखेंगे करीब 6:30 बजे का टाइम, या गर्मियों में 7, 7:30 का वक्त. तो जब ना दिन होता है ना रात, मतलब ये समझ लीजिए द डे इज अबाउट टू एंड and night is about to begin. That time is known as dusk. And similarly, in the morning also, what happens when in the morning also, when night is about to end and day is about to start, is called as dawn. जो भोर बोलते हैं हम, जिसको भोर बोलते हैं सुबह सुबह, जब सूरज बस बिल्कुल निकलने को है लेकिन उजाला है और रात खत्म होने को है, उस वक्त को डॉन बोलते हैं. और दिन खत्म होने को और रात आने को इसको हम डस्क बोलते हैं. तो यहाँ वो बच्चा बता रहा है कि एट डस्क आई रिटर्न होम and make myself fresh. After that, I sit down to read again. At 10 p.m., I usually take my super, and by 10:30 p.m. super also, I go to the bed for the night. But I follow the routine on Sunday because it is holiday. अ डे ऑफ रेस्ट. हाँ, मैंने आपको बताया ना, एंड में हम एक लाइन हमेशा एंड करेंगे कि नॉर्मली दिस इज माय डेली रूटीन एवरी डे. जैसे मान लीजिए अब आप पोते पोती वाली हो गई हैं तो फिर तो आपका संडे को भी सेम ही रूटीन रहता है ज्यादातर. तो आप ऐसा जैसा भी आपको लिखना, आप लिख सकते हो एंड में कि दिस इज माय डेली रूटीन एवरी डे, but sometimes on holidays, yeah, sometimes when I go out of station, yes, sometimes when some guests arrive at my place, yeah, when my family members from other station, out of station come to my place, my daily routine changes. या फिर जैसे डेली रूटीन में जैसे लाइक आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो दोपहर में भी क्लासेस करते हैं,
बट आप उसमें डाल सकते हो ना कि एट 3:30 आई अटेंड क्लासेस ऑर्गेनाइज्ड बाय VLF फाउंडेशन, बट आई एम फ्री ऑन सैटरडेज एंड संडेज बिकॉज आई डोंट हैव क्लासेस टू अटेंड, सो इट्स माय रेस्ट टाइम. आई डू समथिंग विच आई वांट टू डू अकॉर्डिंग टू माय चॉइस. आप वहां कुछ भी ऐड कर सकते. डेली रूटीन तो मतलब यहाँ कैसी चीज हो गई जो हर इंसान की अपनी अपनी अलग होती है. आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. सबको समझ में आया? बहुत इजी चीज है डेली रूटीन लिखना, और ये पूरा का पूरा जैसे प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है और बहुत अच्छा भी होता है लिखना. मैं आपको एक लास्ट सैंपल और बता देती हूँ. यस, आई वांट मोर वन एल्स टू रीड. संगीता मुंदड़ा जी. पूजा जी अब इनको अनम्यूट कर दीजिए. यस दीदी. या यस किया है संगीता दीदी आपको. यस संगीता जी, प्लीज रीड. संगीता जी. संगीता मुंदड़ा. यस किया है यहाँ से अनम्यूट. Okay, Sangeeta ji, Sangeeta you ji. have raised your hand to read. Are you reading? I think you're not getting any response from her. Yes. So unmute Prachi Birla ji. Prachi Birla ji. Just a minute. Can I read, ma'am? What's your name? Manjushri Jaju. Okay, Manjushri ji को पढ़ना है, उनको पढ़ना प्राची है. बिरला. I'm प्राची बिरला. प्राची जी आप नेक्स्ट शीट पढ़ लीजिए क्या? एक मिनट मंजूश्री जी को पढ़ने देते हैं ये वाला. ठीक है, ओके. क्या मंजूश्री जी स्टार्ट रीडिंग. Yeah, ma'am. Daily activities at home. At home, what are some of the daily activities that you do at home? I wake up at 7 a.m. every morning. I press the snoozy button 5 स्नूजी नहीं, times. स्नूज बटन. स्नूज बटन अगर आप देखेंगे ना, अलार्म जब भी घर में आपका अलार्म बजता है तो हम या तो उसको बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं अलार्म बजते से कभी नहीं उठती, तो मेरे इसमें ना स्नूज बटन में 10 मिनट का टाइमर सेट है. मैं 10 मिनट 10 बार दबा देती हूँ करीब करीब. मेरा 6:30 बजे अलार्म बजना चालू उठता है, लेकिन मैं ना 3-4 बार स्नूज करती हूँ उसको, यानी वो हर 10-10 मिनट. स्नूज का मतलब होता है एक बार तू चुप हो जा, 10 मिनट के लिए वो चुप हो जाता है, फिर वो 10 मिनट बाद फिर से बजने लग जाता है. तो स्नूज का मतलब होता है 2 मिनट के लिए शांत रहे. तो वो थोड़ी देर के लिए स्नूज हो जाता है, फिर वापस बजता है, फिर स्नूज होता है, फिर वापस बजता है. तो स्नूज मतलब मैं 5 टाइम, जैसे इसमें लिखा है ना कि आई प्रेस द स्नूज बटन 5 टाइम, ये बिल्कुल मेरी कहानी. मैं सुबह 4-5-6 बार स्नूज बटन प्रेस करती हूँ, बड़ी मुश्किल से उठती हूँ. I press the snooze button 5 times every morning before I turn off the alarm and get up. I हाँ, अब have 5वीं बार क्या करती हूँ, फिर जब 5 बार स्नूज कर चुकी होती हूँ, अब तो झक मार के उठना ही है ना भाई. अब इससे ज्यादा आलस थोड़े ना अपने लेडीज को चलता है. 4-5 बार ही स्नूज कर सकते हैं, बाद में तो भाई मरता क्या ना करता उठना ही पड़ेगा. सो मैं कितने बजे उठती हूँ? आखिरी में 5 बार के बाद में अब अलार्म को बंद करती हूँ और फाइनली आई गेट अप. गेट अप मतलब अब मैं उठ जाती हूँ. I have a cup of coffee and make breakfast. I usually read the newspaper while I have breakfast. My children like to have a shower after they have breakfast, but I like to have a shower before I get dressed. हाँ, अब My देखिए ये wife- दोनों चीज यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट दे दिया कि मेरे बच्चे लोग दे लाइक टू हैव शावर आफ्टर, मतलब बच्चे लोग नाश्ता करके नहाते हैं, लेकिन मैं नाश्ते के पहले नहाती हूँ. इसमें अपन एक चीज ये और कर सकते थे, आई शावर बिफोर ब्रेकफास्ट बिकॉज आई ऑलवेज डू पूजा एंड देन ईट समथिंग. ऐसी बहुत सारी गृहिणियां होती हैं कि वो पूजा करके ही कुछ खाती हैं. दो आई टेक, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, दो आई टेक टी बिफोर शावर. चाय जरूर पी लेती हूँ मैं सुबह, बट नाश्ता मैं पूजा के बाद ही करती हूँ. तो यू कैन ऐड दैट पॉइंट. मैंने आपको बताया ना डेली रूटीन में काफी चीजें अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं. सो आई टेक अ शावर आफ्टर प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट. I do some puja, yeah, I offer some prayers, I do my daily prayers and then take the breakfast. Meanwhile यानी बचे हुए वक्त में जब मैं ये सब कर रही होती हूँ, meanwhile my kids take their breakfast and then they take bath. मतलब मेरे बच्चे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जब तक मैं पूजा वूजा करती हूँ, and then they take a shower and get dressed. Get dressed मतलब तैयार हो. Continue. My wife
My wife brushes her long hair and I have short hair. So I comb my hair. How do you do your hair in the morning? हाँ, ये कोई जेंट्स का डेली रूटीन है, इसलिए उसने माय वाइफ बोला, ठीक है। एनीवेज, It is important to brush your teeth, and some women like to put makeup on. After I have finished work, I go home to cook dinner. In my house, I usually make dinner. The family eat dinner together at 7:30 p.m. After dinner, I make sure that my children do their homework, and then I chill out on the sofa and watch television. यस, चिल आउट ऑन सोफा, ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं आराम से सोफे पे टांग पसार के लेट जाती हूँ, और ये तो हम कभी ना कभी दिन भर में करते ही है ना। ये तो टाइम हमको सबसे अच्छा लगता है, काम से थक हार के बढ़िया रिमोट मिल जाए टीवी का या फोन मिल जाए, बढ़िया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और गरम गरम चाय कॉफी हाथ में आ जाए, isn't it or not? Yeah. So that is the best time of the day. So we can, so I like to chill out on the sofa after completing my housework, after completing my daily chores भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। And in my free time, I like to watch television. अब यहाँ पे भी सब लोग अलग अलग लिख सकते हैं कि देखो, कुछ लोगों को फ्री टाइम में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को धार्मिक ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना अच्छा लगता है। तो हर एक का कैसे होता है, अपना अपना खुद का टाइम पास का तरीका होता है, तो यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट, ओके। Yeah. On television, I usually watch the news. My wife usually comes to tell me to take the rubbish out or wash the dishes. हाँ, मैं जब टीवी देखता हूँ तो मेरी बीवी आके बोलती है, हटाओ ये टीवी, चलो मेरे साथ बर्तन करो। मतलब ये थोड़ा फनी टाइप का डेली रूटीन है। डिश इज आउट मतलब वॉश द डिशेज, यानी चलो मेरे साथ घर का कुछ काम करवाओ। ये तो सबके घरों में होता ही होगा, आधे लोगों के घर में तो होता ही होगा। It's a common Indian family scene. Yeah. Our Yeah. children feed the dog and the cat before they go to bed, and I tell them to go to the bathroom too. If I am sick, I have to take my medication, but then I get into my pajamas and set the alarm so I wake up in the morning. This is how my day ends around 10:30 every day. इस तरह से, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बीमार होता हूँ तो मैं दवाई लेके सोता हूँ। In the end, I get into my pajamas. I get into my pajamas एक बोलने का तरीका है, it's a phrase, हाँ। I get into my pajama मतलब I change my dress. हम दिन भर का ड्रेस चेंज करके नाइट ड्रेस पहन के सोते हैं ना बहुत से लोग। So I change into my night dress and I set the alarm for the next day so that I can wake up on time the coming morning. This is how my day ends every day. But yes, my daily routine is different on weekends because I have a holiday and then I try to spend my maximum time with my family. So I hope it is clear to everyone. Yes, ma'am. Screen share खत्म हो गया ना? I have stopped the screen share ना? ठीक है। तो आज मैंने आप सबको डेली रूटीन सिखा दिया है। कल मैं नहीं बोलूंगी, कल आप लोग बोलेंगे। Tomorrow it is your day to speak and I will be listening and I will be correcting. तो जितने भी लोग प्रिपेयर करके आ सकते हैं बहुत अच्छी बात है। Tomorrow I'm going to give you a chance to tell me your daily routine. Fine everyone, आप लोग लिख के डाल भी सकते हो, किस तरह से लिखना है ये आपकी मर्जी। कई तरीके हो सकते हैं ना, हर एक का डेली रूटीन अलग भी होता है। कुछ लोगों का तो आप देखेंगे डेली रूटीन बहुत मजेदार भी होता है, ना मजा आता है सुन के। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज करते हैं और कुछ लोग तो बस काम किया सो गए, काम किया सो गए, काम किया सो गए, बस उनका एक ही रूटीन होता है। कुछ लोग जब तब देखे तो टीवी के सामने बैठ गए। तो ऐसा भी रहता है, बट देखना कोई लिखेगा नहीं ऐसा, मुझे पता है। करते भी होंगे ना तो हम लिखेंगे नहीं, हम इतने सत्यवादी थोड़ी है। बट एनीवेज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप जो लिखना चाहें, जैसा लिखना चाहे, राइट इट, प्रिपेयर इट। टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई एम गिविंग यू चांस टू स्पीक ऑन डेली रूटीन। फाइन, if you have any doubt you can put the queries on the group, I will solve it. Okay, so I hope everything that I said is clear. Is it clear? सबको समझ में आया अच्छे से? आप बोल के भी देखिएगा, मैं ग्रुप पे जो सैंपल्स डाली उसको आप जोर जोर के बोल के देखिएगा। पूजा जी, you can stop the recording so that now if I wish I can talk to anyone.